by the Raja Ram Mohan Roy during the period of William Bentinck. And then we have seen 1856, which one? Widow Remarriage Act. And is done by the Pandit Ishwar Chand Vidyasagar. उनका नाम विद्यासागर नहीं था, but he has done several schools he has opened, especially for the girls and all, and therefore he has got the title of Vidyasagar. Is it clear to you? And we have seen not only this child remarriage go wrong, child marriage should not happen, widow education, widow, woman education, and I said that woman right to property. So many things I said that we have talked about, and therefore the elite class and middle class families are not happy, and which has converted that key under this. और ये देखा no due place to the Indian literature and Indian language. What is the name of Dayanand Saraswati? कहाँ से थे वो? गुजरात के काठियावाड़. The next one I said that DDLL, lack of social relation and no care for social status. Lack of social relation and no care for, लिख लेंगे, they never adapted Indian culture and tradition. They never adapted Indian culture and tradition. Clear? And did not respect Indian rulers who used to be the godlike personality in front of Indian subject, in front of Indian subject. Is it clear? So this is also one of the, I said that, so lack of social relation and then social status. तो स्टेटस नहीं दिया और कभी हमारे साथ ट्रेडिशन और कल्चर में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ. यस ना, हमारे यहाँ कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि एट ए लार्ज लेवल दे स्टार्टेड गेटिंग मैरिड विद द इंडियन पीपल एंड देन इंडियन पीपल गेट मैरिड विद द, आई सेड दैट, Britishers. So there is no such kind of relation between, I said, India and, तो कोई ट्रेडिशन एंड कल्चर का कोई, उन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश ही नहीं किया. So the next point it is, I said that one, ill treatment of Indians by Britishers. और we have seen this. Yes sir? और वो आप कैसे कहेंगे? Swine and nigger. Swine and nigger. Social status कहीं पे आप देख लेंगे ill treatment they are doing. So DDLI, DD Delhi. Yes sir? And Delhi में क्या है? DLI. D for discontent because of social reforms done by Britishers. मुझे तो शायद याद है. And then D for no due place to the Indian literature and Indian language, and L for lack of social relation and social status of the Indians. Clear? And thereafter I said that ill treatment by Britishers to the Indians and ill treatment of Indians by the Britishers. Yes or no? So हम लोगों ने कौन कौन सा देखा? Economic, political and social. Is it clear to you? And then another, it is, I said that, religious.
religious cause or pro-Christianity policy of government, Dalhousie activity, education system, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ. और ये पॉइंट्स यदि दे दिया जाए ना कि रिलीजियस में कौन कौन सा है, तो आप फटाफट रेलवे एंड टेलीग्राफ को तो पहले ही हटाओगे. यस ना. डलहौजी एक्टिविटी को ही बोलोगे इसकी एक्टिविटी ऐसी तो थी नहीं. आप जो पढ़े रहेंगे अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे तो आप इस पॉइंट्स को यू विल रिमूव. Which are the important causes? Which of the following factors are correct regarding? I said that religious cause during the what? 1857 revolution. So we'll remove this Dalhousie and education system में थोड़ा जोड़ के कुछ कर लोगे आप. Pro-Christianity policy of government, taxation of temples and mosques. Yes sir. ये आपको याद होगा resumption of tax free land. Yes sir. So religious cause. और हमने बोला हमारा रिलीजन, इंडियंस लोग डाइट ज़्यादा खाते हैं कि नहीं, डाइट पे कभी ध्यान नहीं देते. डाइट प्रो नहीं है. यस डाइट प्रो नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, खा लो जितना खाना है. ये हमारा रिलीजन है, इसीलिए तो हम पैदा हुए हैं. वी गॉट बर्थ टू ईट समथिंग. डाइट प्रो. डी फॉर डलहौजी एक्टिविटी. आई फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड telegraph. T for taxation of temples and mosques, and E for education system, and pro-Christianity policy of government. Yes sir. So pro-Christianity policy, if I am talking about the first one, I said what? Pro-Christianity. I said, you know that the Christianity if you see the history, if you see the history of the, this is your Turkey. शायद आपको पता नहीं है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स वर्ल्ड हिस्ट्री में रखता था अपना, और कई सौ सालों तक. और इसको बोलते थे ओटोमन एम्पायर. एंड द होल ईस्टर्न यूरोप इज अंडर देयर. और 1855 को जो क्रीमियन वॉर भी हुआ था, जिसमें रशिया बोला था कि वी शुड, ब्रिटिशर्स के सबसे बोला था कि वी शुड, आई सेड दैट रिस्पेक्ट एंड सेव दिस यूरोपियन पीपल फ्रॉम टर्की. इस बेसिस पे लड़ाई हुई थी. बट वी शुड सी ओटोमन एम्पायर. यस नॉट यहाँ पर था, लेकिन किसको बोलने जा रहे थे? अच्छा, क्रिश्चियनिटी. सो दिस इज आई सेड दैट मुस्लिम, एंड दिस वन आई सेड दैट व्हाट? तो क्रिश्चियंस आर लेस. यस ना. और ओटोमन एम्पायर को हटाने का मतलब है कि दे आर इंक्रीजिंग देयर, व्हाट आई सेड दैट मुस्लिम एम्पायर इन द वर्ल्ड, एंड दे ट्राई टू, व्हाट आई सेड दैट, इंक्रीज, व्हाट आई सेड दैट, क्रिश्चियनिटी इन द वर्ल्ड. तो इसीलिए जब वर्ल्ड हिस्ट्री जब स्टार्ट हुआ तो 3 वर्ड से स्टार्ट हुआ था. गॉड, ग्लोरी, गोल्ड. 3 G लेटर्स आर देयर. परहैप्स आपने कुछ पढ़ा होगा. गॉड, ग्लोरी, gold. Gold means wealth from the different parts of the world, therefore imperialism. Glory means the power. We have to create power in the world. Yes or no? Britishers ने glory नहीं पाया. They have got the gold also, and then God means
Yes, spreading Christianity in the world. Spreading. Yes or not? जब एक रिलीजन बढ़ता है तो देयर इज अ सेफ्टी फॉर दैट रिलीजन कम्स. यस or not? लोग आज बोलते हैं कि हिंदुइज्म को बढ़ाना है. तो चलिए आगे. हमने क्या बोला? प्रो क्रिश्चियनिटी. व्हिच वन आई सेड दैट? प्रो क्रिश्चियनिटी. इसका मतलब इफ आई सेड दैट Christianity was financed by, yes, tell me, Britishers. Christianity was financed by Britishers, and they used to say that if I say that become Christian, you will get jobs and you will get back your lands. आपकी जो ज़मीन ली गई है. और उसके बाद बोलते थे he will, I said that आपके जितने भी पाप हैं वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे. Because Jesus Christ has died for our. यस सर. ये शब्द पहले बोलते थे, उसके बाद ये शब्द बोलते थे कि जीसस क्राइस्ट. आज भी आप जाके क्रिश्चियन में आप जाकर देखेंगे तो दे यूज्ड टू से दैट ही हैज डाइड व्हाट. यस, क्लियर. सो आई सेड दिस इज द वन थिंग दैट यू कैन बी एबल टू सी. अनदर यू कैन बी एबल टू सी. ये चीज दोबारा हम लोग मिलिट्री में भी देखेंगे कि मिलिट्री कैंटोनमेंट में भी क्या होता था. ये टेल मी. Military cantonment may be one. I said that Christian priest used to be there, and they used to guide. I said that ki this is the Christian is this one, the God has this one, and he has been died for your what. आप कभी क्रिश्चियन पीपल से बात करेंगे ना तो ऐसा मोल्ड करेंगे कि आप बोलोगे ने अरे दुनिया में किसके पास नहीं प्रॉब्लम है. हाँ, कभी कभी आप देखो क्रिश्चियन वाले हमारे मंदिर में आ रहे हैं, सिख वाले बोल रहे हैं मैं मंदिर में जाके बैठूं. गुरु नानक जी सेल्फ सोल्व नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम. कभी हिंदू वाले बोलते हैं कि हमारे जितने भी गॉड्स है 33 करोड़ गॉड्स, दे आर नॉट एबल टू सोल्व आवर प्रॉब्लम. वी यूज्ड टू गो टू दरगाह. We used to go to the churches. So it is all are facing problem. So it is helping. I said that unity of different. So just I am saying that इन्होंने ऐसा कहा. And then idea आपको मैंने बता दिया था कि spreading of yes sir. यदि सभी जगह क्रिश्चियनिटी होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन बिकम easier. Yes or not? If the Indian become Christian, then automatically we can be able to, I said that, easily rule over them. आप एक रिलीजन के बन जाएंगे तो we can rule. So it is, I said that, and इसकी वजह से क्या हुआ होगा. लोगों ने अपने अंदर क्या लाकर लेकर आए होंगे. ये तो हमारे रिलीजन को खत्म कर रहे हैं. And that has created resentment among the what? Indian people. Yes sir. ये किसमें? Indian आर्मी में भी कि Indian what? आर्मी क्या हो गए? Resentment. And then normal Indians. दोनों रिसेंटमेंट शो कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट आई सेड दैट फाइनेंस कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी. और हर जगह जो जाकर बोल रहे हैं कि आपको जॉब मिलेगा. देखा होगा आपने कभी कभी मूवीज में आपने देखा होगा, यू विल गेट द जॉब, योर लैंड विल रिटर्न बैक बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिशर्स. यस और नॉट. सो यू विल गेट बैक योर लैंड व्हेन यू विल गेट. तो ये सारी लालच की वजह से लोग बोलते थे अच्छा क्रिश्चियन बन जाते हैं. और इसीलिए आप देखोगे इन द ट्राइबल एरिया द होल केरला विल सी दैट झारखंड and in the several in the northeastern region here and there the people converted into what? Christian. Yes or not? So this is your what I said that pro Christianity policy of government has created resentment among the some class of the people कि ये क्या हो रहा है.
pro-Christianity. Another one I said that Dalhousie activity. I said that in that I said that military cantonment, and I said that in the police imprisonment. Generally ये होता था कि there will be what I said that different pots, different pitchers for different religion. होता था कि नहीं होता होगा? यदि आप जेल के अंदर में भी है तो आपको क्या दिया जाता था? पॉट्स विल बी डिफरेंट, बर्तन अलग होगा, पानी पीने का पिक्चर विल बी. अरे ये तो अभी भी बहुत समय तक हम लोग लड़ते रहे. स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग, देयरफॉर अनटचेबिलिटी व्हाट कम्स? शेड्यूल कास्ट इज व्हाट आई सेड दैट. शेड्यूल कास्ट इज नॉट व्हाट आई सेड. शेड्यूल कास्ट का मतलब ही है द कास्ट व्हिच आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? They are in the mainstream of the society but facing the problem of untouchability. Yes or not? तो शेड्यूल कास्ट का मतलब यही होता है. तो डिफरेंट रिलीजन के लिए ये था, इन्होंने बोला सब कुछ हटा के बोलता सेम पिक्चर, एक ही पिक्चर में पानी पियो. किसने किया? डलहौजी. Who has done this? And military cantonment में भी I said that it has been said that same thing, same picture, same pot. आप पूछो नहीं, अलग अलग, लेकिन कहा जाए तो इक्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है. Yes or not? It is very much important for equality and they are doing good for at that time, good. But we are considering that we will lose our religion. We will lose our and then for resentment. Yes or not? Is it clear? Dalhousie activity. Diet. प्रो को हम लोग ने देख लिया. प्रो क्रिश्चियनिटी पॉलिसी. यस सर, कि प्रो क्रिश्चियनिटी पॉलिसी में यही देखा गया कि जितने भी इट वॉज फाइनेंस्ड बाय द व्हाट? Britishers. Yes or not? So they are putting their role to improve the, I said that through the Christian missionary they are converting out. And दूसरा हम लोगों ने देखा, yes, tell me, yes, yes, मिलिट्री कंटेनमेंट में भी एक क्या हुआ करता था? क्रिश्चियन प्रीस्ट, they used to teach. इसका मतलब क्रिश्चियनिटी बनाने में लगे हुए थे कौन? ब्रिटिशर्स. और डलहौजी एक्टिविटी समझ में आ गया. कहाँ पे दो जगह एक्टिविटी किया इसने? पुलिस इम्प्रिजनमेंट में और मिलिट्री कैंटनमेंट में. यहाँ पे तो उनके चलती है कि आप सेम पॉट में खाओ और सेम पिक्चर में पानी पियो. देयर विल बी नथिंग डिफरेंट फॉर ऑल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी स्टार्टेड थिंकिंग इट इज ऑल. आई सेड दैट वो तो हमारे रिलीजन को ही खत्म करने पे लगे हैं बिकॉज दे सेड दैट दे आर सुपीरियर. दे सेड दैट दे आर, so therefore they are against our, I said, religion. Yes or not? क्योंकि उनका फंडा ही था कि उन्होंने बोला था कि their religion is better, their language is better, everyone, everything. ये तो ही बोल ही रहे हैं ना. कहीं ना कहीं हमारे गॉड्स को inferior दिखा रहे हैं. जो हम लोग रिलीजन में हैं उसको क्या दिखा रहे हैं? inferior. Another is education system. एजुकेशन किसके द्वारा चला जाता था? कॉन्वेंट स्कूल. और कॉन्वेंट स्कूल रन बाय क्रिश्चियन रन बाय, और दे यूज्ड टू गिव एजुकेशन, साइंस नॉलेज. फिर उसके बाद वो किस पे आ जाते थे? जीसस क्राइस्ट